With great respect and profound regards honor, I welcome my dear friends. We wholeheartedly welcome you all in the beautiful galaxy. My name is Pawan with my co-host Khushi from 10th class, and we are going to host today's house appointees and invest teacher ceremony. Dear audience, you may eventually discover the beauty of this beautiful day as events gradually start to blossom. As this day marks down the investiture ceremony of change in public school. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. To make this morning a blessed one, invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessings of the same, I invite our admirable Malik sir, guest of honor and principal sir to kindle the lamp. मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको। दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं, दूर है मंजिल पर इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे और फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। धन्यवाद। Principal sir. So I would like to call respected principal sir for welcome speech. The school, teachers and my dear students. It's a very momentous and significant day today as we are going to honor the house appointees with token of regard, sashes and badges in a little while. Students are the nation builders, true and chaste would-be citizens of any nation. It's our responsibility to inculcate etiquettes, sense of belongingness and conscientiousness of discharging their duties candidly and adequately. We should apprise them of their duties as head boy, head girl and other post holders. They need to be diligent, disciplined, innovative, cautious and affable. Their first and foremost duties are to abide by the rules and regulations of the school, to vindicate the vision and mission of our school, to maintain the discipline and to be pensive and creative about the advancement of this educational institute in guidance of faculty members and the school authorities. I congratulate all the nominated house representatives. Now it's my humble duty to introduce our today's guest of honor. We are feeling pleased and honored to have with us Sri Shubham Malik, who is a prominent socialist and educationist.
He is the director of ICS Coaching Center, Baswal branch. He has just received the Best Branch Award in November 2021 for his remarkable contribution. He is a true patriot and nationalist. He is firm follower of martyr Sardar Bhagat Singh. He has organized many rallies and distributed innumerable books based on life of Bhagat Singh to kindle the flame of patriotism in the young blood. Next to him is gracing the occasion Sri Charan Singh. They are the chairperson of ICS Coaching Center, Mundlana branch. He has served the Indian Army too as faithful son of our motherland, Ma Bharati. He is a renowned mentor and altruist. He takes keen interest in social service, help of needy and deprived people. We express our heartfelt gratitude to both of them for sparing time from their busy schedule. In the end, I wish good luck to the House delegates and thank the dignitaries of today's program to be with us in this function. Thank you. किसने इस दोस्ती को बनाया, किसने इस दोस्ती को बनाया, कहाँ से ये दोस्ती शब्द आया। दोस्ती का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमने उठाया, क्यों दुनिया का सबसे प्यारा दोस्त तो मेरे हिस्से में आया। Now I wanna call Hina for her dance performance. गल मन ले तेरी चन मखना, तू सिर ते सेरे बन मखना, बेबी मन गईया, तू क्यों ना मने साजी, जब मैं हाराजी में, तेरे फिक्र तैनू दस खादी, मैं नच नच कमली हो जूंगी, इतनी खुशी हो तेरे नाली, हाना गल मन ले तोला वे, चल खिची प्यारी तेरे दादी। तू राजा लगेगा जदों तोने बाहां बाहीं पाइयां, लगू लोक गीत चलदा जदों मिल के वंगा छड़काइयां। एक तेरे कपड़े प्रेस करूंगी, दूजे कन्या करूंगी तेरे ढाई मखना, जे तरस जाऊं तेरे नाल लड़के, तेरा दूसरी ने चित जलवाई रखना, तेरा दूसरी ने चित जलवाई रखना। चाहे अद्धी रात मंग लई, रोटी मिलूगी ताजी ताजी, जद मैं हाराजी में, तेरे फिक्र तैनू दस खादी, मैं नच नच कमली हो जूंगी, इतनी खुशी हो तेरे नाली, हाड़ा गल बदले तोला वे, चल खिची प्यारी हाराजी में, तेरे फिक्र तैनू दस खादी, मैं नच नच कमली हो जूंगी, इतनी खुशी हो तेरे नाली, हाड़ा गल बदले तोला वे, चल खिची प्यारी हादी। Good morning to all present here. I, Kashish from 10th Hester, standing here to recite a beautiful poem on best friends. The best of friends can change a frown into a smile when you fell down. The best of friends can change a frown into a smile when you fell down. The best of friends will understand. The best of friends will understand your little trails and lend a hand. Your little trails and lend a hand. The best of friends will always share. The best of friends will always share your secret dreams because they care. Your secret dreams because they care. The best of friends worth more than gold. The best of friends worth more than gold. Give all the love a heart can hold. Give all the love a heart can hold. Thank you. तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला लाडला, माँ
नहीं गिरदा उंज वे तू गले विच चांदी पाई फिरदा वे दिल बड़ा करे नादा तेरे नाल 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 चलां वे झांजरी गवाच गई मेरी तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चलना वे झांजरी गवाच गई मेरी तेरे पिछे पिछे घूमदी दी चलना So now I am inviting Ishika for her dance. So please give a huge round of applause for her. मुझे
कोई बात नहीं है, मेरे लोग तो घणो चोखो है। अच्छा, मेरी सारी डिमांड पूरी करे है, वो क्यों कर? आज की बात ले लो। And MD sir and MD ma'am and the chief guest. I, Suraj, standing here as the head boy of the school. Firstly, I would like to thank the management and the staff who gave me this opportunity. Can't exist my happiness here. Actually, 26 letters of English are fed up with my happiness. I am not standing here to tell you my achievements. I am standing here to tell you my... Our bound greetings to all. I, Khushi, feel privileged to be selected as head girl for our school. I felt short of words to express my emotions, my gratitude for the opportunity. First of all, I would like to thank Honorable Managing Director Sir, Principal Sir, teachers and my dear friends who have shown immense faith in me by selecting me as the head girl of the school. It's indeed a pleasure for me to carry out assigned responsibilities in a sincere, systematic and dedicated manner. For me, being a head girl doesn't about position or title, and for self-improvement.
my top priority will be maintaining discipline in the school, because without discipline our school cannot possibly run. I want to make sure that each and every student of Sheshing Public School respect the school morals and values. I will make sure that proper language is being used and school rules are being followed. I hope I can act as a bridge between teachers and students. I want to become one who support you. I want single student in Sheshing Public School to strive for excellence and make it more better than it already is. Thank you. मान सम्मान देने के लिए। मैं भी भैंसवाल गांव से ही हूँ, लेकिन सर के साथ आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है। मैं सर के साथ शायद 15-20 मिनट बैठा हुआ सर। जैसे मेरे विचार थे सर के भी वैसे विचार थे सेम। जो इनकी सोच थी वही सोच। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आज मुझे। बच्चों आप पढ़ाई करो यहाँ पे। एजुकेशन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है? कोई आंसर देगा मुझे? एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? कोई बच्चा आंसर देगा? एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में सक्सेस पानी है तो एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। मलिक सर ने 1966 में 5वीं पास गांव से की है। मैंने सर से कुछ पूछा, सर 66 से लेकर और 22 तक आपने एजुकेशन के स्तर पर गांव में क्या चेंज देखा? सर का डायरेक्ट एक रिप्लाई था, बहुत ज्यादा डाउन। मेरा भी तुरंत यही रिप्लाई था, बहुत ज्यादा डाउन। सुधरना चाहिए था लेकिन सुधरा नहीं। भैंसवाल गांव में इतने ऑफिसर हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, IPS है, IAS है, SDM है, तहसीलदार है, बहुत सारे टीचर भी हैं। शायद पता होगा आपका पूरा रिकॉर्ड है भैंसवाल गांव का, पूरे हरियाणा में टीचर सबसे ज्यादा है। लेकिन एजुकेशन लेवल क्यों डाउन गया? कारण यही है, ना ही पहले वाले टीचर रहे, ना ही पहले वाले माँ बाप रहे। ये कड़वी सच्चाई है। टीचर को दोष दूंगा मैं, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है। पहले टीचर के पास इतनी पावर होती थी, पीट दे, धमका दे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा घर पे जाके बता नहीं सकता था पेरेंट्स को आज टीचर ने पीटा, क्योंकि उसने घर पे जाके बताया तो उसका उल्टे तो और पड़ेंगे। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल उल्टा चेंज हो गया। टीचर को डर लगता है कि बच्चे को धमकाना दे, कहीं पेरेंट्स की कॉल आए, हमें ही ऊपर डांट मार दे।
कि आपने बच्चों को बोल कैसे दिया। बच्चे को आज के समय में बार बार आप बोल के बच्चा बिगड़ गया। उसको ज्यादा आप की बात करते हैं ना, वो बिगड़ गया। हमारे पूरे भारत में 10% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो खुद कर जाते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज बच्चे हैं। उनको डांट लगा के, पीट के वे तब सुधर सकते हैं। बिना डांट के, बिना पिटाई के नहीं सुधर सकते बच्चे। एक मूवी देखी होगी आपने, अमिताभ बच्चन की है, सूर्यवंशम। किसने देखी है? जब वो कभी भी लाइफ में माँ बाप को धोखा मत देना, क्योंकि पैदा हुए वो आप 18-20 साल तक पेरेंट्स ने पढ़ा दिए, खिला दिया, वो कपड़े किए हैं, बहुत खर्चा होता है, और आपसे उनकी कुछ उम्मीद होती है 20 साल के बाद। अभी कुछ बच्चे 10th क्लास में होंगे, 11th में, 12th में, 2-3 साल बाद 12th पास आउट करेंगे। पेरेंट्स को बहुत उम्मीद होती है, और मैं देखता हूँ आज के दौर में बच्चे बहुत ज्यादा धोखा दे रहे हैं पेरेंट्स, बहुत ज्यादा। 90% बच्चे धोखा दे रहे हैं पेरेंट्स को, 90%। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब डर नहीं है किसी चीज का। मलिक सर भी कह रहे थे कि अभी 10th में जो बच्चे हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, उनका एक कैरियर काउंसलिंग सेशन करवाएंगे कि आपको 10th के बाद करना क्या है। यही मेरे विचार थे। बच्चे को पता ही नहीं होता 10th के बाद करना क्या है। भाई मेरी फ्रेंड ने साइंस ली है, मैं भी साइंस लूंगा। मेरी फ्रेंड ने आर्ट ली है, मैं भी आर्ट लूंगी। मेरी फ्रेंड को मत दी है, मैं भी सो जाऊंगी। उसको खुद नहीं पता तेरा इंटरेस्ट की चीज में है, लेकिन बस फ्रेंड के पीछे। बेटा फ्रेंड्स लाइफ में बहुत चेंज होंगे, फ्रेंड्स आते जाते रहेंगे। जब तक आप लाइफ में सेट नहीं होंगे तब तक कोई आपका फ्रेंड सर्कल रहेगा नहीं। 10th तक आपके फ्रेंड्स हैं, ये 4-5 साल बाद नहीं होंगे आपके। 12th के बाद कॉलेज लाइफ में आपके दोस्त रहेंगे 4-5 साल तक। उसके बाद आप लाइफ में सेट हो जाओगे, फिर आपके ऊपर। First of all, thank you, Mahendra Sirji, Director, Sher Singh Public School, for such great honor. Good morning, students. मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सा हैवी सा मैसेज देने नहीं आया हूँ, बस चलो एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं बेटा। एक बार एक राजा था, उसे लगा कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ ज्ञान की बातें देना चाहता है, कोई मैसेज पास करना चाहता है जिससे सोसाइटी में उसका नाम हो और आगे की पीढ़ियां भी बहुत अच्छे से उस ज्ञान को ऑब्जर्व कर सके। तो उसने अपने जो विद्वान होते हैं उनको बोला कि कुछ ऐसा ज्ञान कलेक्ट करके लेके आओ जो मैं आगे आने वाली पीढ़ियों को समझा सकूं, दे सकूं। तो जो उसकी सभा थी, विद्वानों का जो समूह था, वो कुछ महीनों की मेहनत के बाद बहुत सारी बुक्स उनके पास लेके आए कि ये हैं जो हमने छांटा है ज्ञान, ये आप आगे दे सकते हो। राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसे लगा कि इतना सारा ज्ञान नहीं पड़ेगा कोई भी। उन्होंने उनको फिर से आदेश दिया, किसी और छोटा करके लाओ। वो फिर से गए, कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो बहुत सारी बुक से एक मोटी सी बुक बना के लेके आए कि इसमें बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, आप ये दे सकते हो आगे। राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। उनको फिर से आदेश दिया गया और वो फिर से गए, फिर कुछ पेज लिख के लेके आए। राजा फिर भी संतुष्ट नहीं था कि ये भी वो ज्ञान नहीं है जो मैं देना चाहता हूँ। और फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक लाइन लिख के आए, सिर्फ एक लाइन, जिससे राजा संतुष्ट हो गया। हाँ, ये वो ज्ञान है जो आगे मैं अपनी पीढ़ियों को दे सकता हूँ। और वो एक लाइन यही थी, बेटा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। आपको अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर जितने भी एकेडमिक्स थे, हाउस अपॉइंटीज थे, उन्होंने मेहनत की है कुछ हासिल करने के लिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। वो कीमत हो सकता है आपकी रातों की नींद हो। जब आप जो कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट पढ़ता है तो वो एक कीमत अदा करता है, अपनी रातों की नींद देकर, दोस्तों के साथ पार्टी ना करके। तो ये एक मैसेज है आप सबके लिए जो आप जीवन भर याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। स्टे ब्लेस्ड,
Stay focused. Thank you. आज के फंक्शन के गेस्ट ऑफ ऑनर भाई चरण सिंह, मेरे अजीज, मेरे गांव से शुभम मलिक, और वो बच्चे जिन्होंने प्राइज लिया, उनके पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स। कोरोना के बाद 2 साल ये कोरोना था, ये सारी दुनिया में फैला हुआ था। उस दौरान पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाई। अब स्कूल प्रॉपरली शुरू हुए हैं, ये फंक्शन शुरू हुए। आज की जो सेरेमनी थी, सेरेमनी, यूनिवर्सिटी सेरेमनी, बच्चों को पहले तो शायद ये पता ही नहीं होता था कि सेरेमनी क्या है और इसका क्या मकसद होता है। कहीं भी मनुष्य जहाँ कहीं होंगे वहाँ लीडर भी हो। और मैं बुक्स पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, खासकर ज्योग्राफिक चैनल देखता हूँ। जहाँ पशु हैं, जीव जंतु हैं, वहाँ भी लीडर्स होते। बगैर लीडरशिप के वो सोसाइटी, वो समाज, वो स्कूल, वो संस्थाएं नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि आप में से लीडर्स निखर के आए। ये एक खाली बैज और ये सेस देना, इसके पीछे बहुत जिम्मेवारियां हैं। क्लास मॉनिटर्स, टीचर के बाद टीचर का रिप्रेजेंटेटिव क्लास मॉनिटर्स, वॉलंटियर्स जो अपनी इच्छा से आगे आए कि यस मैं ये करना चाहता हूँ, इस संस्था में, इस स्कूल में, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ। ये भी एक क्वालिटी है, हर किसी में नहीं है, पर मैं ये अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्वालिटी डेवलप करें। स्टेज पे आना, स्टेज पे बोलना, स्टेज पे इनाम देना, ये सब की बस की बात नहीं है, पर हमारी कोशिश है कि हर बच्चा स्टेज पे आए, बोले, इनाम ले, अपनी जिम्मेवारियां ले। मेरे अजीज शुभम बता रहे थे गांव की बात और ये शिक्षा के बारे में। भाई एक बात मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने जीवन के अनुभव से सीखी कि जिस विद्यार्थी ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, अपने टीचर्स की इज्जत नहीं की, उनको कामयाबी नहीं मिली है। जो सम्मान नहीं दे सकता, जो सम्मान कर नहीं सकता, उसको जीवन में सम्मान मिलेगा कहाँ से? शिक्षा ही तो आधार है हर तरक्की का। शिक्षा अगर किसी परिवार में है, कोई बच्चा शिक्षित है, वही तो अपने परिवार को ऊपर लेके जाएगा, वही तो समाज को लेके जाएगा, अपना जीवन सुधारेगा, अपने परिवार का भी जीवन सुधारेगा। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, अब बेटियां जब शिक्षित होंगी तो वो तो 2 घर को सुधारेगी, लड़के तो एक ही घर को सुधारेंगे। शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दें, बेस्ट मैनर्स दें, बेस्ट एटिकेट्स दें, और उनको ये प्रोत्साहित करें कि ये जीवन में आपको आगे बढ़ना है इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करना है। जिन बच्चों ने आज प्राइज लिए, पीछे मैंने स्टेज पे जब कोई फंक्शन था तो मैंने अनाउंस किया था कि जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आएंगे, 10th और 12th, उनको हम ऑनर करेंगे और कैश पाएंगे। आज इस खुशी के मौके पे एक बात और ऐड करता हूँ, क्योंकि
12th तो हमारे पास से पास आउट होकर चली जाएगी, उसको हम ऑनर करेंगे और प्राइज देंगे। और जो 10th में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको प्राइज भी देंगे। और जिस बच्चे ने 10th में 95% से अबव मार्क्स लेगा वो स्कूल +2 तक उसको फ्री पढ़ाएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हमारे लिए मुश्किल खड़ी करें कि हम 3 बच्चे 95 से हो तो कैसे डिसाइड करें। जो भी 95% से ऊपर होगा 10th क्लास में स्कूल उसको +2 तक फ्री पढ़ाए। आज आपके सामने जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स ये शिक्षा से जुड़े हुए, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कूल को कुछ वक्त दें हमारे बच्चों को ये गाइड करने के लिए, खासकर 10th और 12th को, कि 10th के बाद उनको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। देखा देखी सब्जेक्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट उस बच्चे का बढ़िया आएगा जिसको अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। आजकल प्रेशर इतना हो गया है, कंपटीशन इतना हो गया है, स्टडी का सिस्टम चेंज हो गया है, सब्जेक्टिव सिस्टम खत्म, ऑब्जेक्टिव आता है, 500 में से 500 मार्क्स। और आज कंपटीशन के ज़माने में किसी भी स्टूडेंट का 1 नंबर कम रहेगा तो वो 2000 बच्चों से पीछे चला जाएगा, इतना कंपटीशन है। और इस कंपटीशन के ज़माने में यहाँ ये गोहाना बहुत एडवांस नहीं है, ये देहात का एरिया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियाँ अपने पार करनी है। आप शहर के स्कूल में नहीं है, गोहाना को शहर ना मानिए। आपके पास रिसोर्सेज, आपके परिवार के और आपके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज बहुत कम है आपको पढ़ाने के लिए। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि माँ बाप आपके हमारे को फीस आपके लिए कितनी मुसीबत और मुश्किल से देती। उनके खून पसीने की कदर करो जो आपके लिए इतनी मेहनत करके हमें फीस देते और आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आपके पास साधन कम होते जा रहे हैं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, ज़मीन हमारे पास नहीं रही है, नौकरियां बहुत कम हैं, दुकानदारी बहुत कम है, खाएंगे क्या कमाएंगे क्या। ठंडे दिमाग से सोचना, आज जो तुम हो जब वक्त निकल जाएगा तो तुम वो नहीं होगे। और गया वक्त आज तक किसी का वापस ना आया ना आएगा। इसलिए अपने वक्त की कदर करो, अपने टीचर्स की वक्त कदर करो और वक्त को जाया ना करो। एक एक दिन आपका बेशकीमती है, जो दिन छूट गया सो छूट गया, वो दोबारा नहीं आएगा। हर दिन की कदर करो, तभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अंत में आई owe my blessings to all the students, those who secured good marks, those who are given the responsibilities of this post like volunteers and monitors, prize distribution, those who got the prizes. I pray for them the good future and I give them all the blessings and tons of love. Thank you.